वार्म वेलकम टू झलक। आई एम पायल पवार और आज इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की सारी खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज की। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी। The innovative steel slag road technology developed by the Central Road Research Institute, New Delhi, in collaboration with the Ministry of Steel and major steel manufacturing companies, is making significant strides towards the waste to wealth mission. यानी कि स्टील स्लैग रोड तकनीक ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ सड़कें बनाने के लिए स्टील स्लैग स्टील उत्पादन के दौरान जनरेटेड वेस्ट का इस्तेमाल करने की एक नवीन विधि है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में अशुद्धियों और धातु सामग्री को हटाने के लिए स्टील स्लैग को प्रोसेस करना और फिर इसे रोड बेस या सब बेस लेयर्स के लिए एक समुच्चय के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। द प्रोसेस्ड स्टील स्लैग हैज हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस, abrasion resistance, skid resistance and drainage capacity, making it suitable for road constructions. Steel slag roads have proven to be cost effective as they are approximately 30% cheaper to construct compared to conventional paving methods. The first road constructed using the steel slag road technology in Surat, Gujarat has garnered recognition for its technological excellence. ग्राउंड वाटर एक्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने खुलासा किया कि भारत में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्राउंड वाटर एक्ट को सफलतापूर्वक लागू किया है। The legislation includes a crucial provision for rainwater harvesting aimed at promoting sustainable water management. In response to a question in the Lok Sabha, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति यानी कि एक लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि मंत्रालय ने सुटेबल ग्राउंड वाटर लॉज बनाने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए एक मॉडल बिल तैयार किया है। These states and UTs include आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। मनरेगा जॉब कार्ड्स। 2022-23 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत 5 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड रद्द कर दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने विलोपन के कारणों को रेखांकित करते हुए एक लिखित उत्तर प्रदान किया है, जिसमें फर्जी जॉब कार्ड, डुप्लीकेट, लोगों द्वारा बाहर निकलने, स्थानांतरण और मृत्यु जैसे मुद्दे शामिल थे। In 2021-22, a total of 1,49,51,247 Manrega job cards were deleted. West Bengal, Andhra Pradesh and Telangana witnessed the highest number of Manrega job card deletions. The deletions of Manrega job cards were attributed to various reasons, including fake job cards, duplicate job cards, workers not willing to work anymore, etc. Recently, the Ministry of New and Renewable Energy, in partnership with the International Solar Alliance, unveiled the report on Roadmap of Solar Energy for Universal Energy Access, developed under India's G20 presidency in 2023, showcases how solar energy can play a key role in achieving electricity access। यानी कि दर्शाता है कि कैसे सोलर एनर्जी बिजली की पहुंच हासिल करने और वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। Key points: The roadmap emphasizes solar energy as a key solution to achieve universal energy access by 2030. It identifies around 59% of the unelectrified population best suited for electrification through solar-based mini grids. Approximately 30% of the unelectrified population can be electrified through grid extensions and the remaining 11% of the unelectrified population through decentralized renewable energy solutions. Centralized Security Control Center. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the Aviation Security Control Center of CISF in New Delhi, aiming to address the prevailing security challenges in aviation. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमानन क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में CISF के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल के पीछे प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करना है। ASCC वर्तमान में CISF के सुरक्षा कवरेज के तहत 66 नागरिक हवाई अड्डों से संबंधित सभी संभावित खतरों और सोशल मीडिया गतिविधि की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। ASCC 24/7 रियल टाइम डेटा निगरानी और यात्रियों और हवाई यातायात के ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से संचालित होता है। स्टेट PSUs एंड कॉर्पोरेशंस के लिए कैनरा बैंक टॉप्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स।
स्टेट पीएसयूज और कॉर्पोरेशंस के लिए अग्रणी ऋणदाता के रूप में कैनरा बैंक का लगातार 5वें साल प्रदर्शन इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और सरकारी संस्थाओं को समर्थन देने के प्रति समर्पण को दर्शाता है। The Finance Ministry, in response to queries raised by MP Velusamy P, disclosed that Canara Bank's lending to government bank entities reached an impressive 1,87,813 crores during the fiscal year 2022-23. This amount represented a 11% increase compared to the previous fiscal, wherein the bank disbursed rupees 1,69,532 crores to government entities. रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदन ने जगजीवन आरपीएफ अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया। ये शहीद स्मारक 4,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं और आरपीएफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। मणिपुर मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति की ओर से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया गया है। लोकसभा में कम से कम 332 सांसदों का बहुमत हासिल करने वाली पीएम मोदी की सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। इस कार्रवाई का मुख्य कारण मणिपुर मुद्दा है, जिसमें 125 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हुए और हर दिन अकथनीय भयावहता की नई कहानियां सामने आई। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से संसद के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध का एक प्रमुख कारण संघर्ष और 3 महीने की हिंसा के बाद भी इसे खत्म करने में सरकार की असमर्थता रही है। विपक्षी भारत ने कहा है कि बहस का इस्तेमाल करने का उनका मुख्य उद्देश्य मणिपुर मुद्दे को उजागर करना और संसद में मामलों को संबोधित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, एड्रेस द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ द ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 के समापन सत्र यानी कंक्लूडिंग सेशन को संबोधित किया। Hosted by the Food Safety and Standards Authority of India, that is FSSAI, under the aegis of the Ministry of Health and Family Welfare, the summit featured keynote addresses and technical sessions focused on global food safety and regulatory. The summit was inaugurated on 20th of July 2023 by Dr. Mansukh Mandavia, Union Minister for Health and Family Welfare. Various initiatives including Foodocopia, a collection of food category-wise monographs and a single point reference for all applicable standards for a specific product, that is Sangraha, Safe Food for Nations, Global Food Regulatory Authorities Handbook and the Common Digital Dashboard were launched during the inauguration ceremony. जेंडर पैरिटी एंड विमेंस एम्पावरमेंट की यूनाइटेड नेशंस की एक हालिया रिपोर्ट दुनिया भर में विमेंस एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की स्थिति पर प्रकाश डालती है। The comprehensive analysis jointly created by UN Women and Human Development Program evaluated 114 countries based on the Women's Empowerment Index and the Global Gender Parity Index. Only 1% of the women globally live in countries with high women empowerment and high gender parity. Women lag behind men by 28% across key dimensions of human development as measured by the GGPI. None of the 140 countries analyzed achieved complete women's empowerment or gender parity. Over 90% of women worldwide reside in countries with lower or middle women's empowerment and low or middle performance in achieving gender parity. In the latest Henley Passport Index 2023, Indian passport has climbed 7 places to secure the 80th rank, up from 87th in 2022, giving its holders visa-free access to 57 countries. The Henley Passport Index is a ranking system that evaluates all the world's passports based on the number of travel destinations their holders can access without the need for a prior visa. This index encompasses 199 different passports and covers 227 travel destinations. It is compiled and published by Henley Partners, a global citizenship and residence advisory firm. Singapore now holds the most powerful passport in the world, granting its citizens visa-free access to an impressive 192 travel destinations out of 227 worldwide. यशवंत घाटगे सुंदयाल मेमोरियल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटालियन कैंपेन में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में इटली के मोंटोन पेरूगिया में वीसी यशवंत घाटगे
सुंदीलाल स्मारक का अनावरण किया गया। ये स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में लड़ने वाले भारत सैनिकों की वीरता और बलिदान के लिए श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। ये स्मारक विक्टोरिया क्रॉस के प्राप्तकर्ता नायक यशवंत घाटगे के सम्मान में समर्पित है, जिन्होंने ऊपरी तिब्बत घाटी की ऊंचाइयों में तीव्र लड़ाई के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर किए। इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती white rice. The Food and Consumer Affairs Ministry has banned the export of non-basmati white rice to stabilize the volatile retail prices in the country. यानी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने देश में अस्थिर रिटेल प्राइसेस को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार दुनिया के शीर्ष चावल निर्यातक भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के सभी एक्सपोर्टर्स पर प्रतिबंध लागू कर दिया। सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट बैन का कारण भारतीय बाजार में गैर बासमती सफेद चावल की पर्याप्त उपलब्धता की गारंटी देना और देश के अंदर कीमतों में वृद्धि को कम करना था। यूक्रेन में वॉर के कारण देश के चावल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका वैश्विक खाद्य कीमतों पर एक इम्पोर्टेंट प्रभाव पड़ा। रशिया बैन्स ट्रांसजेंडर मैरिजेस। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने LGBTQ+ समुदाय के लिए एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित अधिनियम व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर या मेडिकली यानी कि चिकित्सकीय रूप से अपना लिंग बदलने से सख्त रोक दिया है, जिससे रूस की संकटग्रस्त LGBTQ+ आबादी और हाशिए पर चली जाती है। The new legislation imposes a comprehensive ban on various aspects related to gender changes. It prohibits any medical interventions aimed at altering a person's sex and also bars individuals from changing their gender in official documents or public records. इसके अलावा कानून लिंग परिवर्तन को प्रतिबंधित करने से आगे बढ़कर विवाह और फैमिली प्लानिंग तक अपना प्रभाव बनाता है। ये उन मैरिजेस को रद्द कर देता है जिनमें भागीदारी में से एक ने लिंग परिवर्तन कराया है, और ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फॉस्टर अडॉप्टिव पेरेंट्स बनने से रोकता है। WHO ने UAE के 18 वर्षीय पुरुष में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी MERS-CoV के पहले मामले की पहचान की है। आपको बता दें, it is caused by Middle East Respiratory Syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012. It is a zoonotic virus which is transmitted between animals and people. MERS-CoV की पहचान की गई है और इसे मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कई सदस्य राज्यों में ड्रोमेडरी ऊँटों में मानव संक्रमण से जोड़ा गया है। WHO के अनुसार MERS-CoV का कोई इलाज टीका नहीं है, लेकिन टीके और उपचार विकसित किए जा रहे हैं। IMF अपग्रेड्स इंडियाज GDP ग्रोथ। IMF ने 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.1% तक बढ़ा दिया है, जो मजबूत घरेलू निवेश के कारण देश की बेहतर होती आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि को पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.1% कर दिया है, जो पिछले अनुमान 5.9% से ज्यादा है। ये ऊपर की ओर संशोधन मजबूत घरेलू निवेश के लिए जिम्मेदार है और 2022-23 की चौथी तिमाही की उम्मीद से ज्यादा मजबूत वृद्धि की गति को दर्शाता है। IMF की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक ने अमेरिकी मंदी और गिरती मुद्रास्फीति की कम संभावनाओं के बीच साल 2023 में विश्व विकास के लिए आधारभूत पूर्वानुमान को 3% तक बढ़ा दिया है। IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक ने 2023 में 3% की वैश्विक GDP वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जो पिछले पूर्वानुमान से 2.8% से ज्यादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष 2014 में मध्यम होकर 6.4% होने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2013 में देखे गए 6.8% के विस्तार से कम है। मंदी का कारण तंग मौद्रिक स्थिति और तेल की ऊंची कीमतें हैं। हालांकि ADB भारत की आर्थिक संभावनाओं के बारे में आशावादी बना हुआ है और वित्त वर्ष 2025 में विकास दर 6.7% तक पहुंचाने की उम्मीद कर रहा है। इस बैंक को प्राइवेट कंजप्शन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से प्रेरित विकास की उम्मीद है, जो देश में परिवहन बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और ओवरऑल बिजनेस इकोसिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित है। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 75 रनों की जीत के साथ दक्षिण क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र को पछाड़कर दलीप ट्रॉफी जीती है।
In a pursuit of a target of 298 runs, West Zone, who resumed their innings at 182/5 on the final day, were eventually bowled out for 222. His victory marked South Zone's 14th Duleep Trophy title, and it held special significance as a form of redemption. FIFA Ranking 2023. लेटेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग अपडेट में भारत को 99वें स्थान पर रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में प्रगति दर्शाता है। ब्लू टाइगर्स के नाम से मशहूर भारतीय टीम ने हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप और SAFF चैंपियनशिप दोनों हासिल करते हुए उल्लेखनीय जीत हासिल की है। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण रैंकिंग में एक स्थान की बढ़त हुई। 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत रोमांचक फाइनल मैच में लेबनान को 2-0 से हराता चैंपियन बना। ये भारत की अब तक की हाईएस्ट फीफा रैंकिंग जो थी वो 94 थी, जो फरवरी 1996 में हासिल की गई थी। दिलचस्प बात तो ये है कि शीर्ष 10 रैंकिंग अपरिवर्तित बनी हुई है, जिसमें पूरी तरह से यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी टीमों का वर्चस्व है। लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना शीर्ष स्थान पर कायम है, उसके बाद फ्रांस और ब्राजील क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। The next positions are closely contested by England, Belgium and Croatia, securing the 4th, 5th and 6th rank. ओपन सी स्विमर अंशुमन झिंगरन ने उत्तरी चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाले विश्व स्तर पर सबसे पहले कम उम्र के व्यक्ति बनने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नवी मुंबई के 18 साल के खुले पानी के तैराक अंशुमन झिंगरन ने उत्तरी चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर ये उपलब्धि हासिल की है। केवल 125 दिनों में पूरी की गई उनकी असाधारण उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। अंशुमन की उत्कृष्ट उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय तैराकी समुदाय से अच्छी खासी वैश्विक पहचान और प्रशंसा दिलाई है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। The World Cup 2023 will be held in India from October 5 to November 19, 2023. India will start their World Cup campaign against Australia on October 8, and Rohit Sharma-led side will take on Pakistan at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on October 2. The upcoming World Cup will feature a total of 10 teams. India, as the host nation, has secured direct qualification along with Afghanistan, Australia, England, Bangladesh, New Zealand, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली achieved this upward movement in the batting charts during the India's second test against West Indies at Port of Spain. The right-handed batter, who made his debut for Team India on August 18, 2008 against Sri Lanka in Dambulla, surpassed legendary South African all-rounder Jacques Kallis' tally of 25,534 runs, which he managed to score in 519 matches played across formats during his 19-year-long career at the highest level. FIFA Women's World Cup 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्री क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। ये प्रतियोगिता 20 जुलाई से शुरू होकर ठीक एक महीने बाद 20 अगस्त को फाइनल तक चलने वाली है। US, the current world champions, has been placed in Group E for the tournament. Their group includes the Netherlands, Portugal and Vietnam. The group is expected to be highly competitive, and as the Netherlands has consistently performed well in women's football and Portugal has been making significant strides in recent years. अब जानते हैं इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2023। 23 जुलाई को भारत हमारे जीवन में रेडियो के गहरे प्रभाव का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाता है। द डे मार्क द इंसेप्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो ब्रॉडकास्ट नोन एज ऑल इंडिया रेडियो। इस मौके पर जश्न मनाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जो आधुनिक भारत को आकार देने और संचार के नए माध्यमों की खोज में प्रसारण की भूमिका पर चर्चा करने पर केंद्रित है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन 1923 एज एन इनिशिएटिव ऑफ द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। In response to public outcry over the closure of Indian Broadcasting Company, the government took charge of broadcasting on April 1, 1930, renaming it the Indian State Broadcasting Service. Initially experimental, it became permanently under government control in 1932. Income Tax Day 2023. The Income Tax Department observes July 24 every year as Income Tax Day or Aikar Divas to commemorate the introduction of provision of income tax in the country.
यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश में आयकर प्रावधान लागू होने के उपलक्ष्य में हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाता है। On the same day in the year 1860, income tax was originally introduced in India by Sir James Wilson to compensate for the losses incurred during the First War of Independence. This is the 163rd anniversary of Income Tax Day. On Income Tax Day, the CBDT organizes various events and activities to raise awareness about income tax and its importance. कारगिल दिवस 2023 देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। The day commemorates the victory of Operation Vijay, which was a significant military victory over Pakistan during the Kargil War in 1999. In 2023, India is celebrating its 24th anniversary of Kargil Vijay Divas. The day is also known as Kargil War or Kargil Conflict. On this day in 1999, the Indian soldiers fought against the Pakistani intruders who had crossed the line of control into Indian territory. World Brain Day 2023. इंटरनेशनल ब्रेन डे यानी विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष 22 जुलाई को होता है। ये उत्सव पिछले 9 सालों से चल रहा है और मस्तिष्क रोगों यानी कि दिमाग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में काम करता है। इस दिन विविध स्थानीय और वैश्विक संगठन और समुदाय न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान के लिए अधिक जागरूकता, वकालत और समर्थन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक साथ आते हैं। This year's theme is Brain Health and Disability, Leave No One Behind. This global initiative aims to address the knowledge gap and raise awareness about brain health and impairments. मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए यानी इसकी कंजर्वेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की वैश्विक समझ को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य डिस्टिंक्ट, प्रीशियस और डेलिकेट एनवायरमेंट्स यानी विशिष्ट, बहुमूल्य और नाजुक वातावरण के रूप में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व की वैश्विक समझ को बढ़ाना है। ये दिन इस पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रबंधन, सुरक्षा और उपयोग में स्थायी प्रथाओं की वकालत करने का भी प्रयास करता है। यूनेस्को की सामान्य सम्मेलन ने 2015 में आधिकारिक तौर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के प्राथमिक उद्देश्य से प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। This day is observed each year on 28 July to raise awareness on viral hepatitis, and this year's theme is One Life, One Liver. Hepatitis virus has 5 commonly known strains, that is type A, B, C and D and E. All of them affect the liver, but there are some key differences in origin, transmission and severity of the disease. अब बात करते हैं पीपल इन न्यूज यानी उन लोगों के बारे में जो इस हफ्ते न्यूज में बने रहे और क्यों न्यूज में बने रहे। सतपाल भानु Satpal Bhanu appointment as the managing director of LIC is effective from the date he assumes office until the date of his superannuation, which is December 31, 2025, or until further orders, whichever comes earlier. He will replace Siddharth Mohanty in his new role. आलोक आराधे जस्टिस आलोक आराधे ने 23 जुलाई को हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। He succeeded Justice Ujjwal Bhuyan, who was elevated as a judge of Supreme Court. He was born on 13 April 1964 and he began his practice in Jabalpur from 1988, where he dealt with civil, constitutional and company matters. Ashish Jitendra Desai. In a formal ceremony held at Raj Bhavan, Justice Ashish Jitendra Desai took the oath as the 38th Chief Justice of the Kerala High Court. यानी राजभवन में आयोजित एक फॉर्मल सेरेमनी में जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल हाई कोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। He was previously a judge of the Gujarat High Court and served as the senior most judge of that court. He was an acting Chief Justice of Gujarat High Court previously and obtained an undergraduate degree in economics from St. Xavier's College, Ahmedabad. Lokesh M. नोएडा अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफिसर लोकेश एम ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की। 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर लोकेश एम को पूर्व सीईओ ऋतु माहेश्वरी को डिविजनल कमिश्नर आगरा के रूप में स्थानांतरित किए जाने के बाद नोएडा अथॉरिटी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। लोकेश एम जो पहले कानपुर डिविजनल कमिश्नर थे,
उन्होंने प्राधिकरण कर्मचारियों के साथ बैठक की और शहर के निवासियों की समस्याओं को संबोधित करने के अलावा नोएडा को एक सुंदर शहर बनाने के लिए अपनी योजनाएं रखी। Before his posting in Kanpur, Lokesh M was posted in Saharanpur as Divisional Commissioner, and he was known for his initiative to open de-addiction centers in that district. He had been District Magistrate and Collector of Mainpuri, Kushinagar, Eta, Ghazipur, Amroha and Kaushambi districts from 2009 and 2016. टीवी नरेंद्रन को 19 सितंबर 2023 से 5 साल के लिए टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। खनन और धातु उद्योग में 34 सालों के उल्लेखनीय अनुभव के साथ उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड में रहना, टाटा स्टील यूरोप और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में काम करना शामिल है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय will succeed the current Chief Justice of Bombay High Court, Justice Nitin Madhukar Jamdar. He had been serving as a sitting judge of the Allahabad High Court for the past 11 years, and during this tenure, he gained considerable experience in administering justice within the largest high court, which comprises a total of 160 judges in the country. Dheeraj Singh Thakur. Justice Dheeraj Singh Thakur appointed as new Chief Justice of Andhra Pradesh High Court. He was a former judge of High Court of Jammu and Kashmir in 2013. He was transferred to the Bombay High Court in June 2022, where he has served with distinction, and he was enrolled as an advocate on October 18, 1989 with the Bar Council of Delhi and subsequently within the Bar Council of Jammu and Kashmir. फांगनोन कोन्याक संसद सदस्य के रूप में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी। एस फांगनोन कोन्याक, an Indian politician hailing from Nagaland, holds the position of state president of BJP Mahila Morcha in her region. In a historic moment, she earned the distinction of being the first woman from Nagaland to secure a seat as a member of parliament in the Rajya Sabha. लीजा फ्रेंचेटी। एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के सदस्य के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनी। लीसा मैरी फ्रेंचेटी एक संयुक्त राज्य नौसेना एडमिरल हैं, जो सितंबर 2022 से नौसेना संचालन के 42वें उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में नामांकित हैं। फ्रेंचेटी ने पहले 2020 से 2022 तक संयुक्त स्टाफ की रणनीति, योजनाओं और नीतियों के निदेशक के रूप में काम किया। 2022 में लड़ाई विकास के नौसेना संचालन के दूसरे उप प्रमुख और 2018 से 20 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के छठे बड़े कमांडर के रूप में काम किया है। She was the second woman promoted to 4-star admiral in the United States Navy, and she studied at the Northwestern University's Medill School of Journalism in Evanston. She was awarded a Bachelor of Science degree in journalism and earning developmental honors in history. So friends, that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. Also subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.